तो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हम प्रार्थना की मीटिंग में आएंगे और प्रभु हमसे बातें करने चाहते हैं। प्रभु हमारा करीब आना चाहते हैं, हम भी पर कुछ करीब आना चाहिए। प्रभु का वचन यही कहता है कि ड्रॉ नियर टू गॉड, प्रभु के और करीब आ जाओ हम, और प्रभु आपके करीब आ जाएंगे। तो हम कैसे प्रभु के करीब आएंगे, ये सबसे बड़ा आशीष है हमारे लिए। It's a big blessing for us to come draw close to God. That is, one day in the courts is better than 1,000 outside. The best thing. Okay, Sister Jew is on the line. Yes, brother. Okay. So the psalmist says that one day in your presence is better than 1,000 outside. और वचनकार कहता है कि एक दिन आपकी उपस्थिति में रहना 1000 दिन बाहर रहने से ज्यादा अच्छा है। There are so many enjoyments in this world, but the presence of God is this fullness of joy. और बहुत सारा आनंद है इस जीवन में, जो परमेश्वर की उपस्थिति है उसमें आनंद की भरपूरी। So that is why God wants us to enjoy His presence more and more. इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी उपस्थिति का ज्यादा से ज्यादा आनंद उठाएं। And that is like having heaven in our lives. और ये उस प्रकार होगा जैसे स्वर्ग हमारे जीवन में। We have already experienced a taste of heaven in our life. हमने पहले से ही हमारे जीवन में स्वर्ग का अनुभव लिया है। When we come to the Lord, Lord takes away our burdens, our sin, our condemnation, our depression, and gives us so much of encouragement and joy in our life. जब हम प्रभु के पास आते हैं तो बहुत सारे हमारे पाप और हमारा जो बोझ होता है प्रभु ले लेते हैं और हमारे जीवन में प्रोत्साहन देते हैं। And then we draw closer to God. और फिर हम प्रभु के करीब आते हैं। And the people who draw close to God, they say God's presence is the best presence, best place to be in. और जो प्रभु की उपस्थिति में आते हैं वो कहते हैं कि जो परमेश्वर की उपस्थिति है उसको सबसे अच्छी जगह है रहने के लिए। Jesus lived like that while he was on this earth. जब यीशु मसीह संसार में थे तो वो उसी प्रकार जिए। He did only what God told him to do. उन्होंने वही किया जो परमेश्वर ने उनसे करने के लिए कहा। And that is the best place to be in. और वो सबसे उत्तम जगह है रहने के लिए। Sometimes we wish that we can go here and there to foreign countries and to do a lot of sightseeing. But that, if it is not in the will of God, it is not at all good. और कई बार हम भी सोचते हैं कि हम यहाँ यात्रा करें, उधर यात्रा करें, पर अगर वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं। To eat different types of good food. अलग-अलग प्रकार का खाना खाना। So people in this world, they only think that is a safe, that is a happy life to live. और इस संसार के लोग सोचते हैं कि यही बहुत अच्छी एक खुशी वाला जीवन है जीने के लिए। But then soon after experiencing all that, they suddenly fall back into their own sad ways. और ये सब अच्छा अनुभव करने के बाद वापस वो दुःख में चले जाते हैं। But in the presence of God, there's fullness of joy. परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी का आनंद है। Then the Holy Spirit begins to flow in our lives and we experience the presence of God in our life. और पवित्र आत्मा फिर हमारे जीवन में होंगे और परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव हमारे जीवन में होगा। That is why those who desire God want God only and want nothing else. सॉरी ब्रदर। Those who desire God want God's presence only and nothing else of this world. और जो लोग प्रभु को चाहते हैं वो सिर्फ उनकी उपस्थिति अपने जीवन में चाहते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। That is why the Apostle Paul said in the book of Philippians, chapter 3, इसलिए प्रेरित पौलुस ने फिलिपियों के 3 अध्याय में कहा, verse 7 and 8, 7 और 8 वचन। whatever things were gained to me, those things I have accounted as loss for the sake of Christ. More than that, I count all things to be loss in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them but rubbish, in order that I may gain Christ. परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। So when the Apostle Paul came to Jesus Christ, he came out of his Jewish system, and because of that, he was in danger of losing all his property and his inheritance from his fathers. और जब प्रेरित पौलुस यीशु मसीह के पास आए थे तो वो यहूदी थे तब, और उनके पास एक ऐसा खतरा था कि उन्हें सब कुछ, उनका जो पुराना संपत्ति थी उन्हें खो देना था। So that's what happens when we come to Christ. Many of times our relatives,
and all forsake us, and they don't give us any property. और ऐसा ही होता है कई बार जब हम मसीह के पास आते हैं तो हमारे रिश्तेदार हमें कोई भी संपत्ति देने से इनकार कर देते हैं। So the initial years of the Apostle Paul's life, he never got anything. He had to work with his own hands, even though he was such a rich man, son. फिर प्रेरित पौलुस के साथ भी ऐसा ही था, उन्हें अपने हाथों से काम करना होता था। So even though he had such a lot of property and inheritance, he never got that inheritance. और उनके पास बहुत सारा संपत्ति होने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। But he said, doesn't matter. I don't want all this earthly property. I want to be close to Christ. और इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे इस पृथ्वी पर की कोई भी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यीशु मसीह चाहिए। I've seen Jesus Christ, and I know he is the living God, and I'm going to serve him and love him, and everything else I don't count it as so important. और मैंने यीशु मसीह को देखा है, मुझे सिर्फ उनके लिए जीना है और कोई भी बात मेरे लिए मायने नहीं रखती है। And all the things that seem to great is just lost for me. I don't consider those as important things. और जो भी चीजें बहुत उत्तम दिखाई देती है वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। Compared to the fact of knowing Jesus Christ. और उसकी तुलना में कि वो यीशु मसीह को जानते हैं। And Jesus Christ should be my Lord. और यीशु मसीह ही मेरे प्रभु होने चाहिए। And he should direct my paths and direct whatever I do. और वो ही मेरे मार्ग का दर्शन करे और जो कुछ मैं करूं वही मार्गदर्शन करे। And verse 8 says, because of Jesus Christ, I have suffered so many things, the loss of so many things. और 8वां वचन कहता है कि यीशु मसीह के कारण मैंने बहुत सारी हानि उठाई है। All my position in this world, all my riches I have lost, and everybody thinks I'm such an evil man, and they hate me. और बहुत सारा जो पद था और जो धन था उसको खोया है और लोगों ने उनको बुरा समझा है। And then he said, see, but as for me, I count all these things that were gained in this world as rubbish. और वो ये कहते हैं कि संसार की जितनी भी जो लाभ है उनको सबको कूड़ा कचरा समझता हूँ। So many great things are there in this world, our property, our name, and so many other things. He says all this is rubbish compared to knowing Jesus Christ. और वो ये कहते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं संसार में, नाम है, पैसा है, पर यीशु मसीह को जानने की जो तुलना है उसमें वो सब कुछ कूड़ा कचरा है। Yeah, it is just like rubbish. The rubbish, what do we say? In Bombay, we say it's kachra. Is a Hindi word, kachra? यस ब्रदर, कूड़ा कचरा। Kuda. Actually, in Bombay, we call kachra. So I don't know, that may be a Marathi word, I think. So all this is things of this great things are going to be destroyed, and that is why the Apostle Paul knew that, and God has opened the eyes to see that. और ये जो सारी उत्तम चीजें हैं ये सब कुछ एक दिन इसका नाश हो जाएगा और प्रभु ने प्रेरित पौलुस की आंखें इस बात के लिए खोल दी थी। So many times in our own situations, we find that we are attached to so many worldly things. और हम भी देखते हैं कि हम भी बहुत सारी पृथ्वी पर की चीजों पे बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। We like a big house, we like good clothes, we like good food, we like to travel here and there. हमको बड़े-बड़े घर पसंद है, अच्छा खाना पसंद है, इधर-उधर घूमना पसंद है। We like to have a lot of hobbies and so many things, and meet good people, and so many things. We have our own desires. और बहुत सारी हमारी खुद की लालसाएं होती है, लोगों से मिलना और अपने शौक को पूरा करना। But if God gave us all these desires, we would definitely backslide and go, even lose our salvation. और अगर हम इन सब चीजों का पीछा करेंगे तो हम अपने उद्धार को खो देंगे। For example, we know that Solomon was such a wise man, and he asked God for wisdom. और हम जानते हैं कि सुलेमान बहुत ही एक बुद्धिमान व्यक्ति था और उसने बुद्धि के लिए मांगा था प्रभु। When he sought God, God gave him so much of wisdom. और जब उन्होंने प्रभु को खोजा तो परमेश्वर ने उन्हें बहुत सारी बुद्धि दी। But along with the wisdom came lots of riches and position, and he became one of the greatest kings of this world. और बुद्धि के साथ बहुत सारा धन और बहुत सारा पद उनके पास आया और वो बहुत बड़े राजा बने। But then instead of seeking God like his father David, he began to seek after all the worldly pleasures. और दाऊद के समान परमेश्वर को खोजने की बजाय इस संसार के सुख को वो खोजने। He tried to make a big palace for himself. और बहुत बड़ा एक महल बना लिया खुद के लिए। He made so many different types of gardens and orchards, and so many servants he had. और बहुत सारे बगीचे और बना लिए अपने लिए और बहुत सारे जो दास दासियां थे उनके। And so many horses and cattle and
so many things, so many different types of experiments he started doing. और बहुत सारी भेड़-बकरियाँ थी उनके पास और बहुत सारे घोड़े थे और बहुत सारे अलग-अलग तरीके के वो काम करते थे And so many wives and concubines. और बहुत सारी उनके पास पत्नियाँ थी And all that he wanted to enjoy life. और वो पूरे जीवन को अपना आनंद उठाना चाहते थे। But in the end, he found that he has wasted all his time on earth. और फिर अंत में उन्हें पता चला कि उन्होंने अपने पृथ्वी पर का पूरा जीवन खराब कर दिया है। And he said, vanity of vanities, all is vanity. और फिर उन्होंने कहा ये सब बातें कुछ भी नहीं व्यर्थ है ना, vanity. है। So all these worldly pleasures and worldly attractions are just vanity. और ये सारी जो बातें हैं, संसार की बातें हैं, वो व्यर्थ हैं। So when we look at all these people around us who are following all the great people, the film stars, they look so beautiful. They are all following vanity. और जब हम इस संसार के लोगों को देखते हैं, वो फ़िल्म में काम करने वाले अभिनेता और अभिनेत्री के पीछे भागते हैं, वो कुछ भी नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। And so many believers also are running after these things. और बहुत सारे विश्वासी भी इन सब चीज़ों के पीछे भागते हैं। And because of that, there is a lot of emptiness in the life of people. और इसी कारण से उनके जीवन में खालीपन होता है। And so many believers and leaders and pastors have got so much of emptiness in their life. और बहुत सारे जो विश्वासी हैं या अगुवे हैं, पास्टर्स हैं, उनके जीवन में खालीपन होता है। Because the Holy Spirit has departed from their life. और पवित्र आत्मा उनके जीवन से चले गए हैं। That's why David said, Lord, do not take the Holy Spirit away from me. इसलिए दाऊद ने कहा कि प्रभु मेरे जीवन में से पवित्र आत्मा मत ले लीजिए। David was called a man after God's own heart. और दाऊद को परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति बोला गया। From a young child, he sought after God. और बहुत छोटे बचपन से उसने परमेश्वर को खोजा। When he is out in the fields looking after the sheep, he thought about God and he praised God, and with the help of God, he did so many good things. और जब वो छोटा था, भेड़-बकरियों को चराता था, तो उन्होंने परमेश्वर को खोजा और उनकी सहायता से बहुत अच्छे काम करे। He killed a lion and he killed a bear, and by his own bare hands, God helped him because he asked God for help. और उसने शेर को मार दिया, भालू को मार दिया कि परमेश्वर की सहायता से। And nobody knew about it. और किसी को इस बारे में पता नहीं था। Nobody knew that this young boy was such a spiritual person. और किसी को नहीं पता था कि ये जो छोटा-सा बालक है, बहुत ज़्यादा आत्मिक है। And only God had to tell Samuel, this is a young boy who is worthy to become the king of Israel, who has a desire for God in his life. और सिर्फ शमूएल को परमेश्वर ने बताया था कि ये छोटा-सा बालक है, ये इज़राइल का राजा बनने के लायक। He was only a teenager. वो बहुत छोटा था। We see in the book of Psalm 37, भजन संहिता 37 में जाएँ। it says, verse 4, चौथा वचन। delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart. यहोवा को अपने मुक्त सुख का मूल जान, तब वह तेरे मनोरथों को पूरा करे। Delight means we must think that whatever God's will is and whatever God's ways are, that is the best thing for me. और सुख का मतलब होता है ये समझना कि जितनी परमेश्वर की बातें मेरे जीवन के लिए वो भली हैं। So we be very happy to do the will of God. और इसलिए हमें बहुत खुश होना चाहिए परमेश्वर की इच्छा को करने के लिए। When we are so happy with the God, then God will put those desires into our heart also. और फिर हम जब परमेश्वर के साथ खुश होंगे तो परमेश्वर वो सारी बातें हमारे मन में डाले। So God's desires will become our desires also. परमेश्वर की इच्छाएं हमारी इच्छाएं हो जाएं। So both our desires will be the same. और फिर दोनों इच्छाएं एक जैसी होंगी। Earlier, God desires was one thing and our desires was another thing. और पहले ये होता था कि प्रभु की इच्छा कुछ और होती थी और हमारी कुछ और होती थी। God's desire was that we will become holy and hate sin and live in fellowship with God, read the word of God and come closer to God. परमेश्वर की इच्छा थी कि हम साफ रहें, पाप ना करें, परमेश्वर का वचन पढ़े, परमेश्वर के करीब आए। And to do good to all men and to have a good heart. और एक अच्छा हृदय हमारे पास हो और सब मनुष्य के साथ हम अच्छा करें। But human desire, all our desires was just to do evil. पर जो मनुष्य की इच्छा होती है सब बुरा काम करने की होती है। Our only desire was to make more money and to eat good food and to wear good clothes and to travel here and there.
और हमारी इच्छा सिर्फ ये रहती है कि हम अच्छा खाना खाएं, अच्छा बड़ा हमारा घर हो, हम इधर-उधर घूमें। Because of that, we keep on falling into all sorts of sins. और इसी कारण से हम सारे प्रकार के पापों में गिर जाते And we are having hatred in our hearts toward other people. हैं और दूसरे लोगों के प्रति हमारे जीवन में नफरत होती है And we are not forgiving other people. और दूसरों को हम माफ भी नहीं करते। But now, when the kindness of God came into our heart, the Holy Spirit came. The Holy Spirit gives us the desires of God. और जब परमेश्वर का दया दया हमारे जीवन में आती है तो पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की इच्छा देते हैं जीवन में। So all of us, brothers and sisters, when we are filled with the Holy Spirit, we seek after God and we pray to God the prayers that God wants us to pray. और जब भाइयों बहनों जब हम पवित्र आत्मा में होते हैं तो परमेश्वर जैसी इच्छा करते हैं वैसी हम प्रार्थना करते हैं। So what is God's desire for us and what should be our desire for God? तो परमेश्वर की क्या इच्छाएं हैं हमारे लिए और हमारी क्या इच्छाएं होनी चाहिए परमेश्वर की? That we should always live with God all the time and God, Holy Spirit should always be with me. कि हम परमेश्वर के साथ हमेशा बने रहें और पवित्र आत्मा हमारे पास। That is to live like in heaven while we are in this earth. और ये इस तरह से होगा जैसे हम स्वर्ग में रहते हैं इस पृथ्वी पर के रहने के समय में। We see in the book of Isaiah chapter 57, यशाया में यशाया 57 verse 15. 15 वचन। You know this verse for all of us. It is very good to listen to read this word over and over again. और ये बहुत अच्छा वचन है, इसे बार-बार पढ़ना चाहिए। For thus says the high and exalted one, who lives forever and whose name is holy. I dwell on a high and holy place, and also with the contrite and lowly of spirit, in order to revive the spirit of the lowly. क्योंकि जो महान और उत्तम और सदा स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र हैं और कि नम्र लोगों के हृदय को खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। So God is living in the high heavens, and He is holy. He is separate, and He wants to live with human beings. और जो परमेश्वर है वो ऊंचे पे विराजमान है और वो हमारे साथ रहना चाहते हैं। When God made Adam and Eve, He walked with them. जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो प्रभु उनके साथ चले। But Adam and Eve wanted to be independent, and they did what they liked. Because of that, God did not walk with them. और क्योंकि आदम और हव्वा अपने तरीके से जीना चाहते थे, उन्होंने परमेश्वर की नहीं सुनी। But Adam's children, like Enoch and David, they were so humble and they walked with God. पर जो आदम के जो बच्चे थे, इनॉक था और ब्रदर Enoch and Noah, जो नोहा था वो परमेश्वर के साथ चले। they wanted to do the will of God. वो परमेश्वर की इच्छा करना चाहते थे They were contrite, they were repentant. और वो पश्चातापी थे। They said, Lord, there are a lot of wrong things in my life. I want to set it right. उन्होंने कहा कि परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत सारी बुरी बातें हैं, मुझे उन सब बातों को सही कर। And they humbled their pride every day. They said, God, we are not worthy. We have done so much evil, even though we are created by you. We are thinking very high thoughts about ourselves. और उन्होंने कहा हम बिल्कुल भी योग्य नहीं हैं, हम भले ही आपके द्वारा बनाए गए हैं पर हमारे हमारे जो विचार है वो बहुत ऊंचे हैं हमारे बारे में। You know, God loves such people. और आप जानते हैं प्रभु ऐसे लोगों से प्यार करते हैं। If you and I are always repenting from our sins every day and finding our fault and asking God to help us and say, Lord, we are not worthy at all, God loves such people. और अगर आप और मैं भी ऐसा ही करेंगे, रोज अपनी गलतियों को मान लेंगे और प्रभु से कहेंगे हम बिल्कुल भी योग्य नहीं है, तो प्रभु हमसे प्रेम रखेंगे। And you will say, Lord, give me the desire in my heart. और हम प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसी इच्छा दें। To have a humble heart and to have a repentant heart, a heart that wants to change its ways. और एक ऐसा हृदय जो अपने मार्गों को बदलना चाहता है और पश्चाताप करना चाहता है। We have so many bad habits and so many sins hidden in our life. और बहुत सारी गलत आदतें, बहुत सारे पाप हमारे जीवन में छुपे हुए हैं। And when we ask God to show it, then only God will show it. और जब हम प्रभु से बोलेंगे कि हमें दिखाएं, तभी प्रभु हमें दिखाएंगे। But most believers don't want to see their sins and don't want to repent. और बहुत सारे विश्वासी अपने पापों को देखना नहीं चाहते और मन भी फिराना नहीं चाहते। They think they're quite okay.
उनको ऐसा लगता है कि वो ठीक हैं। And the fault is with the husband and with the wife and the pastor and everybody else. और जो गलती है वो उनके पति में है, पत्नी में है, पास्टर में है और दूसरों में है। And because of that, they are so proud. और इसी कारण से वो घमंडी होते हैं। Because of that, there is no revival in their life. There is no joy and peace in their life. और इसी कारण उनके जीवन में कोई बेदारी नहीं होती है, कोई आनंद और शांति नहीं होती। It says God wants to bring a revival in your life, those who are humble people and who are repentant people. और यहाँ पर लिखा है प्रभु जो खेदित और नम्र मन के लोग हैं, उनके जीवन में उनको हर्षित करना चाहते हैं। They are always very happy. और वो हमेशा खुश रहते हैं। This is in English it is known as a paradox. अ, Andrew, जो how do you say that? इसको अंग्रेजी में पैराडॉक्स बोलते हैं। Paradox means that one word which has got two different effects. और पैराडॉक्स का मतलब होता है कि एक ही चीज़ जिसके 2 अलग-अलग प्रभाव हों। The humble people and the people who think they are bad and they are sinners, God thinks they are very good. और जो एक नम्र व्यक्ति होता है, वो जो सोचता है कि मैं बहुत बुरा हूँ और तो परमेश्वर उसके बारे में अच्छा सोचते हैं। And the people who think that they are righteous and and they think very good of themselves, God just hates them. और जो लोग सोचते हैं कि मैं बहुत धर्मी हूँ और बहुत अच्छा हूँ, तो परमेश्वर उनके बारे में बुरा सोचते हैं। So many proud believers God hates. और बहुत सारे जो घमंडी विश्वासी होते हैं, परमेश्वर उनसे नफ़रत रखते हैं। Because they have no desire for God at all. क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर के लिए कोई इच्छा नहीं होती All the time they have just lot of worldly desire. और हर समय उनके जीवन में सिर्फ़ इस संसार की इच्छाएँ होती है। So many believers everywhere, even in CFC, have got so many worldly desires. और बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं सीएफसी में भी, जिनके जीवन में सांसारिक इच्छाएँ हैं। We have to say, Lord, I don't want these worldly desires. It only give happiness for a short time. I want your presence always with me. और हमें कहना है कि प्रभु मुझे संसार की जो लालसाएँ वो नहीं चाहिए, ये बहुत कम समय के लिए हैं, आपकी उपस्थिति मुझे मेरे जीवन में चाहिए। When we walk with the Lord gives us lots of earthly blessings. और जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो परमेश्वर हमें इस पृथ्वी पर की बहुत सारी आशीषें देते हैं। But we must not keep on loving these and desiring that. But we say, Lord, I want to desire you and worship you. You have given me all these things. और हमें इन सब चीज़ों से प्रेम नहीं रखना है, इनकी लालसा नहीं रखनी है, पर परमेश्वर के से कहना है, प्रभु मुझे आपके साथ चलना है, आप ही ने मुझे ये सारी वस्तुएँ दी हैं। If it is there, it is good. If it is not there, also it is not. It is good. अगर है तो भी अच्छा है, अगर चीज़ें नहीं हैं तो भी अच्छा है। That is how Job prayed. Lord, you have given, and Lord, you have taken away. और इसी तरह अय्यूब ने प्रार्थना करी, प्रभु आपने दिया और आपने ले भी लिया। Praise the name of the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। He was not attached to these worldly things at all. वो इस संसार की चीज़ों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था। And that is why God blessed him tremendously in the end. He blessed him with his close presence and also with so many earthly riches. और इसलिए परमेश्वर ने उसे बहुत आयत की आशीष दी, परमेश्वर उसके करीब भी थे और इस पृथ्वी पर की आशीष भी उसे मिली। All these earthly blessings like so much of money, property, a good married life, and a lot of children, and all these are earthly blessings. और जो अच्छा घर है, अच्छा खाना है, बहुत सारे बच्चे, शादी, ये सारी पृथ्वी पर की आशीष हैं। People of this world also are eagerly seeking after these things. इस संसार के लोग भी बहुत उत्सुकता से इन सब चीज़ों का पीछा करते हैं। But how many people are praying, Lord, give me I want to walk with you, I want to be close with you. और कितने लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे आपके करीब रहना है, आपके लिए जीना है। I don't want to sin, Lord. मुझे पाप नहीं करना है। Lord, I've got such a lot of sinful tendencies in my life. All proud thoughts come. Lord, please deliver me from this. और बहुत सारे घमंडी विचार मेरे मन में आते हैं, बहुत सारा पाप मेरे जीवन में, प्रभु मुझे इससे छुटकारा दे दें। Then the Lord will help such people by giving them the Holy Spirit. और फिर परमेश्वर मदद करेंगे पवित्र आत्मा देकर। And He'll fill them with the Holy Spirit and give them victory over sin and give them so much of joy and happiness in their life. और परमेश्वर पवित्र आत्मा देंगे, सारे पापों के ऊपर जय देंगे, आनंद और शांति भी देंगे। And He'll give them the ability to help all the people around them. और परमेश्वर योग्यता देंगे कि हमारे आस-पास के लोगों की हम मदद कर सकते We can help people in our home, हैं। हमारे घर के लोगों की हम मदद कर सकते हैं। do good to our neighbors, हमारे पड़ोसियों के लिए भला कर सकते हैं। do good to all our friends. सारे दोस्तों के लिए हम अच्छा कर सकते हैं।
and to give friend to all our brothers and sisters in Christ. और सभी जो मसीह में हमारे भाई-बहन हैं उनके लिए हम अच्छा कर सकते हैं। We have been called to be a blessing. हमें बुलाया गया है आशीष होने के लिए। So that is the wonderful thing that God does for people who come close to Him. और ये एक अद्भुत काम है जो परमेश्वर करते हैं उन लोगों के लिए जो उनके करीब आते हैं। And because David lived like that, he was a blessing to the nation of Israel. और इसी जब दाऊद इस तरह से रहा इसलिए वो इज़राइल जन के लिए एक आशीष था। And God was so happy with David और परमेश्वर जो थे वो दाऊद के साथ बहुत ही खुश थे। because he said, "This man is after my own heart." The same attitude we have, और परमेश्वर ने कहा कि ये जो व्यक्ति है वो मेरे मन के अनुसार, and because of that, I will bless him and also his children, and Jesus will be born through his line. और इसीलिए मैं उसको भी आशीष दूंगा, उसके बच्चों को भी आशीष दूंगा और यीशु मसीह भी उसके ही वंश में से होंगे। So, brothers and sisters, when we are living and seeking the Lord, the blessing of God comes to us, and we can be a blessing to others, and not only us, to all our generations will be a blessing. और जब हम परमेश्वर को ढूंढेंगे तो हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण होंगे और हमारी आगे की पीढ़ी के लिए भी। So, dear brothers and sisters, let us delight in God. और इसलिए भाई और बहनों परमेश्वर में हम खुश रहें। What does it mean delight in God? To love the things that God loves. और परमेश्वर में खुश रहने का मतलब है जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वही हम करें। To hate the things that God hates. और जो परमेश्वर जिन बातों से नफरत रखते हैं उनसे हम नफरत करें। Then we will have godly desires coming into our mind. और फिर हम देखेंगे कि ईश्वरीय बातें हमारे जीवन में आ रही All the sinful desires will go away. और जितनी पाप वाले जो विचार है हमारे जीवन से चले जाएं। So this is how the Holy Spirit works in your life and my life. और इसी तरीके से पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में काम करते हैं। We must delight to read the Word of God. और परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए हमें खुश होना चाहिए। We must delight to pray and to ask God. Make an effort to pray and seek after God. और परमेश्वर से प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए परमेश्वर को खोजें। And to think and to also to praise God in every situation. और हर एक परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति करें। Because He is doing everything for our good, though we cannot see it. और क्योंकि वो हमारे लिए सब बातों में भलाई कर रहे हैं, भले ही हम उसे देख ना सकें। And whatever God tells us to obey, और जो भी प्रभु हमसे कहते हैं उसका आज्ञा पालन करना। whatever is written in the Word of God, just do it. और जो भी कुछ परमेश्वर ने वचन में लिखा है उसे करें। And then God will be very close to us. और फिर परमेश्वर हमारे बहुत करीब हो। And we can experience heaven over our life. और फिर हम स्वर्ग का अनुभव हमारे जीवन में कर सकेंगे। That is, we will always be singing and praising God. और वो ऐसा होगा कि हमेशा हम प्रभु के लिए गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति करें। To love the Lord means we have to hate all the wrong things that God hates. और परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब जितनी बातों से परमेश्वर नफरत रखते हैं वो हमें भी रखना है। We have to stop pleasing people. लोगों को खुश करना बंद करना है। Sometimes that is a big burden for us. How to displease people. और कई बार हमारे ऊपर बहुत बोझ रहता है कि कैसे हम दूसरों को नाखुश कर दें। It's better to displease people than to displease God. और ये अच्छा होगा कि लोगों को हम नाखुश कर दें बजाय कि परमेश्वर। That's how the godly people in the Old Testament and New Testament lived. और इसी तरीके से जो ईश्वरीय व्यक्ति थे पुराने नियम में नए नियम में ऐसे ही जिए। Shadrach, Meshach, and Abednego told the greatest king that was never lived in this world, Nebuchadnezzar, if our God saves us, that is okay. If God does not save us, we will not bow down before you, O king, before the idol. शत्रक मेशक अबेदनगो जो थे उन्होंने कह दिया था कि परमेश्वर हमें बचाते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं बचाते तो भी हम तुम्हारे सामने नहीं झुकेंगे। So these are the people God really loves very much. They are God's heroes, and God will support them completely and give them all the eternal benefits. और ऐसे लोगों से परमेश्वर बहुत प्रेम रखते हैं और परमेश्वर उनको बहुत सहारा देते हैं और अनंत जीवन देते हैं। What a wonderful way God has shown us, each one of us. और कितना एक अद्भुत और अच्छा तरीका परमेश्वर ने हम सबको बताया है। A simple, humble heart and a heart that is willing to change. और एक बहुत ही नम्र हृदय और एक ऐसा हृदय जो चाहता है बदलना। And a heart that is willing to take correction from the Holy Spirit. और एक ऐसा हृदय जो पवित्र आत्मा से बहुत सारी गलतियों को ठीक करवाना चाहता है। Yes, and then God will be very close to us. और फिर परमेश्वर हमारे बहुत करीब होंगे।
We will always be dwelling in the presence of God. और हम हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे। I want to dwell there only all the days of my life. और मुझे हमेशा वहीं बने रहना है मेरे जीवन के सारे दिनों। Many times I wasted my time running after so many unnecessary things. और कई बार मैंने अपने समय को व्यर्थ किया है बिना ज़रूरत की चीज़ों के पीछे भागने में। But God has told me, do the things that God wants you to do only. और पर फिर परमेश्वर ने मुझे कहा कि जो परमेश्वर चाहते हैं वही करो सिर्फ़। What Jesus said in Mark chapter 8, what will it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? यीशु मसीह ने मरकुस के 8 अध्याय में कहा कि अगर मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ हो? If our soul goes to hell away from the Lord for all eternity, what is the use? हमारा अगर प्राण परमेश्वर से दूर अगर नरक में चला जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? So let us use every day, brothers and sisters, to live for the Lord and to love Him. और इसलिए भाइयों-बहनों हम रोज़ इस्तेमाल करें हमारे दिन को परमेश्वर के लिए जीने के लिए और उससे प्रेम रखें। आमीन। आमीन। तो हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की वचन सुनेंगे, अपना व्यक्तिगत जीवन में प्रभु की संगति में रहना है और हम पवित्र आत्मा की भरपूरी मांगेंगे। पवित्र आत्मा पवित्र है और पवित्र इच्छाएं हमको दे देंगे। जब हमारा इच्छाएं अपवित्र होता है, प्रभु हमको करेक्शन दे देंगे, हमको डांटेंगे और सही रास्ते पे लेके आएंगे और तभी हम पवित्र आत्मा के द्वारा सबका भलाई करेंगे, सबकी भलाई हमारा जीवन से आएंगे। गुड थॉट्स एंड पवित्र आत्मा की भरपूरी इस छोटी सी जीवन में प्रभु हमको दिया है। लोगों की सेवा करेंगे, प्रभु की सेवा करेंगे और हम भलाई के कारण बनेंगे। हमारे घर में, हमारे कलीसिया में, हमारे इलाके में यही प्रभु की इच्छा है हमारे जीवन में। यार बाकी सब हम दूसरों के भी प्रार्थना करेंगे, प्रभु की सुसमाचार दूसरों को भी सुना सकते हैं। ये पूरा दुनिया है हमारे सामने, प्रभु हमारे ये बहुत ही इच्छा करते हैं कि हम हमारा जीवन सही तरह से जिए, तो प्रभु हमको बहुत ही मदद करेंगे। अब हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया लॉर्ड, ईश्वर के लिए दीना बाबा रास्ते के लिए मदद। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारा जीवन में एक आपके लिए एक इच्छा डाला है। हमारा हम तो कुछ नहीं थे, हम केवल पाप के ऊपर पाप करते थे। हमारा दिमाग में, हमारे विचार में पाप ही पाप था। आपको मालूम है हमारे जीवन में कितना पाप थे। हमको मालूम है प्रभु जी, आपने हमारे पर इतना दया किया प्रभु जी। हमको नरक शैतान की खींच से निकाला, नरक से बचाया प्रभु जी। हम आपके सेवा में रहना चाहिए प्रभु जी, आपकी संगति में रहना चाहिए। हम दुनियादारी में घुसना नहीं प्रभु। शैतान हमको इतना सारा लालच देते हैं प्रभु जी, ताकि और परीक्षा देते हैं प्रभु, लेकिन हमको आपकी वाणी सुनना है, आपकी वाणी को निभाना है, आपका वचन को निभाना है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट के लिए। हमको तो बहुत ही थैंक यू बोलते हैं आपके लिए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। दिन प्रतिदिन हम हर दिन जाते हैं, हर कठिनाई में, प्रॉब्लम्स में आपको खुश करने के लिए यही हमारा इच्छा है प्रभु जी। तभी आपकी इच्छाएं हमारी इच्छा हो जाएंगे लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हमारे जीवन में आपने कितना बदलावट लेके आए प्रभु, हमारा चेंज हमारा जीवन में लेके आए प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आगे भी और बहुत चेंज बाकी है प्रभु जी, इसलिए हमारा पूरा पूरा आदतें हैं प्रभु जी है, वो चेंज करो प्रभु जी। प्रभु आपको मालूम है हमारे सब भाई बहन बेटे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में क्या क्या सीक्रेट लाइफ में क्या क्या हो रहा है प्रभु जी। प्रभु आपसे हम कुछ नहीं छिपा सकते प्रभु। आप ही हमारा जिंदगी का जांच लेने वाले प्रभु। हमको आप दिल हमको रोज रोज सफाई करना है प्रभु जी और गंदगी कबूल करना है। पवित्र आत्मा से हम विजय पाएंगे प्रभु जी, ताकि हम हमारा जीवन में पवित्रता आए या दूसरों को भी हम नमूना बनाए प्रभु जी। यीशु समाचार बोल सकते हैं कि प्रभु हमेशा उद्धार करते हैं हर चीज में। हालेलुया। प्रभु हम आर्थिक चीज के लिए पूछते नहीं, क्योंकि अब ये आर्थिक चीज हमारे पास आएंगे प्रभु। प्रभु हमको धैर्य दे दीजिए प्रभु, आपके लिए जीने के लिए, आपकी महिमा के लिए जीने के लिए लॉर्ड, दिन प्रतिदिन। हालेलुया प्रभु। अब धन्य है प्रभु जी, ताकि हमारा फैमिली में सब लोग है प्रभु जी, सब लोग प्रभु में सच्चा शिष्य बने प्रभु जी। शैतान की लालसाएं, दुनिया की लालसाएं, दुनिया की इच्छाएं प्रभु उनके जीवन से दूर हो जाए। वो देख सके कि अनंत जीवन क्या है प्रभु जी, और कितना छोटी जीवन है हम जीते हैं प्रभु जी। प्रभु हमको आंखें खोले प्रभु, सभी हमारा भाई बहन लोग का, हमारा परिवार जन का भाई आंखें खोले प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। यही हमारा इच्छा है कि सच्चे दिल से देखें कि आप मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे प्रभु जी। लोग पागल जैसे जीते हैं प्रभु जी और पूरा
जीवन वो व्यर्थ करते हैं प्रभु जी। हम भी ऐसे किए थे, लेकिन आपने हमारे ऊपर दया किया प्रभु। हालेलुया, आप धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, आप हम तब धन्य है प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू एंड प्रेज यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, हमारे कलीसिया के लिए भी आशीष दे प्रभु, जो कुछ भी है सच्चाई से आराधना करे प्रभु। हमको अपने अपना वी डोंट वांट टू, आप हमारा सब दिल देखते हैं प्रभु जी, और सच्चाई से और नम्रता से प्रभु जी और दीनता से हम आपके साथ चले प्रभु जी, और दिन प्रतिदिन एक आशीष के कारण बने प्रभु। आपने बोला कि सुसमाचार दूसरों को भी बताना चाहिए। आपने हेवन से स्वर्ग से पृथ्वी में आया ये हमको बचाने के लिए और सुसमाचार बताने के लिए। आपने कहा कि ये सुसमाचार लेके दूसरों को भी बताओ, ताकि आपने आपको मुफ्त सब मिला है, आप मुफ्त में दे दीजिए। थैंक यू लॉर्ड, यू गिवन अस फ्रीली एंड फ्रीली वी कैन गिव। तो कहाँ भी हो प्रभु, हम आपकी साक्षी बने के जीवे प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, यू कैन डू दिस वर्क हर ब्रदर एंड सिस्टर में प्रभु। हर जगह हम कलीसिया बने प्रभु जी, जो इकट्ठा होते हैं सच्चे दिल से इकट्ठा हुए प्रभु जी। Lord, there be many churches in our country, Lord. प्रभु जहाँ आपके आराधना कर सकते हैं प्रभु जी, और सच्चाई से आपका आराधना करेंगे प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप एंड प्रेज यू फादर। प्रभु बाकी अपना ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की प्रार्थना करते, जो कुछ भी और आर्थिक चीज है जरूरत है प्रभु, उनको मिले प्रभु जी। जो जॉब दिया है प्रभु, आप दे रहे हैं प्रभु जी, इसलिए आप धन्यवाद देते हैं। बच्चों को जॉब मिल रहा है प्रभु, इसलिए आप धन्यवाद दे हैं प्रभु। और बाकी लोगों का शादीशुदा नहीं है प्रभु, उनको भी करेंगे प्रभु आपकी टाइम पे। यू मेक एवरीथिंग ब्यूटीफुल इन योर टाइम, इसलिए तब तक आपको धन्यवाद देना चाहिए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, बाकी जो बीमार है उनको भी पूरा चंगाई दे दिए प्रभु जी। आप सबको स्वस्थ रखा है प्रभु जी, और स्वस्थ रखेंगे प्रभु जी। इस समय हम ब्रदर राम शरण का फैमिली को भी हम सौंपते हैं प्रभु जी आपके पास लॉर्ड। उनको जो सता रहे हैं प्रभु जी, दूसरा भाई भी बहन भी है प्रभु जी, प्रभु उनको धैर्य दे दीजिए। और सब शैतान की चाल लॉर्ड हम रिब्यूक लॉर्ड, अब हम हमला करते हैं उनके, वी रिब्यूक इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट लॉर्ड, ताकि वो लोग भी प्रभु आपके साथ प्रभु दृढ़ रहे और आपकी सेवा में रहे प्रभु। सब संसारिक लालसाई से दूर हुए और आपकी महिमा के लिए जिए प्रभु जी। और लोग भी, कई लोग भी आप उस इलाके में और जिले में प्रभु के पास आए प्रभु जी। प्रभु अब जल्दी आने वाला है, हमको तैयार रहना है प्रभु आपके लिए। प्रभु एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है प्रभु, ये हमारा हमको एक बोझ दे दीजिए कि जब हमको टाइम मिले प्रभु, संसारिक चीजों में हमारा मन इधर घूमने फिरे नहीं प्रभु, लेकिन आपके ऊपर हमारा मन रहे प्रभु जी, ताकि हमारे जीवन में हमेशा शांति रहे प्रभु। कलीसिया का भी आशीष करे प्रभु, तो देश को भी आशीष करे, ये हमारा विनती है। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता। पिता आज ने आपने दिखाया पिता, आपके अनुग्रह दया से पिता प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, मेरे जीवन के लिए पिता परमेश्वर, आपने मुझे चुना पिता परमेश्वर, अपना पुत्र बनाया पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में पिता बहुत सारी कमियां हैं पिता परमेश्वर, हम जैसे भी जी रहे हैं पिता परमेश्वर, मदद करना पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु अगुवाई करना अब्बा फादर, कि प्रभु हम आपकी इच्छा पे चल सके पिता परमेश्वर। जो भी आपकी इच्छा है पिता, आपके वचन में जो लिखा है पिता परमेश्वर, उसके द्वारा हम जीवन जी सके पिता परमेश्वर। मुझे मदद करना पिता परमेश्वर। मेरा पिता परमेश्वर जीवन प्रभु आपके हाथों में समर्पण करता हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते पिता हमारा घर परिवार के लिए पिता, बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, वाइफ के लिए पिता परमेश्वर, मम्मी पापा के लिए पिता, भाइयों के लिए पिता, सबके लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। हर एक को प्रभु आपका अनुग्रह हो पिता परमेश्वर, और आपके इच्छा के द्वारा चलने के लिए पिता, जीवन जीने के लिए पिता, इस संसार में पिता परमेश्वर हमें मदद करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मदद करना प्रभु हमारे भाइयों को पिता परमेश्वर, जो प्रभु इस संसार में कैसे भी जी रहे पिता, उन्हें प्रभु आपका उद्धार मिले पिता परमेश्वर। और प्रभु जी उन्हें भी आपका जो प्रकाश है पिता, वचन का प्रभु वो सही तरीके से समझ सके पिता, और आप आपसे प्यार कर सके पिता, जैसा आप हमसे करते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते पिता इस कलेसिया के लिए पिता परमेश्वर, हर एक भाइयों को पिता जो बीमार है प्रभु जी, उन्हें भी आप छू दो पिता, पवित्र आत्मा से छू दो प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर वो आपसे प्रार्थना और स्तुति कर सके पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठा सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता जो काम धंधे पे नहीं पिता, उन्हें काम के लिए प्रार्थना करते पिता, उन्हें भी प्रभु आपके इच्छा के द्वारा एक काम दे दो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता प्रभु। प्रार्थना करते पिता हमारा एल्डर भाइयों के लिए पिता परमेश्वर, ब्रदर जॉर्ज, ब्रदर ब्रंदामन
रत्ना स्वामी ब्रदर, इन सबको पिता परमेश्वर, उनके बच्चों को, फैमिली को पिता आपके हाथों में सौंपते पिता। और शैतान की कोई भी युक्तियां प्रभु उनके जीवन में पूरी ना हो पिता परमेश्वर, और उनको और पवित्र आत्मा से भरना प्रभु, ताकि आपके वचन का प्रकाशन जो हमें मिलता है अब्बा फादर, वो हमें और मिले पिता परमेश्वर, ताकि हमारा इच्छा प्रभु आपकी तरफ और हो जाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता हर एक भाइयों के लिए पिता परमेश्वर, हर एक को पवित्र आत्मा से प्रभु भरना पिता परमेश्वर, हर एक को छू देना पिता परमेश्वर। और पिता बच्चों के लिए प्रार्थना करते पिता, उन्हें भी प्रभु आपके वचन में और आपके भय में जीने के लिए मदद और सहायता करना अब्बा फादर। धन्यवाद करते पिता इस देश के लिए पिता, जहाँ पे आपने हमें रखा है पिता, आपको स्तुति और आराधना करने के लिए पिता, उसके लिए धन्यवाद करता है फादर। इस जगह के लिए, इस देश के लिए पिता, हमारे आस पड़ोस वालों के लिए पिता प्रार्थना करते हैं, हमारे सगे संबंधी के लिए पिता, आपके वचन को समझे पिता, और एक दीपक के जैसा चलने के लिए पिता, हम सबको मदद करना पिता परमेश्वर, हमारा कलीसिया को आशीष करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, आमीन। हालेलुया, स्तुति प्रभु, धन्यवाद देता हूँ। हे हमारे स्वर्गीय परम परमेश्वर पिता, आज के मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए, हे परमेश्वर पिता, तू जिंदा परमेश्वर है और तू सच्चा परमेश्वर है, तू सुनने वाला परमेश्वर है, तुम्हारा आँख से तू देखने वाला परमेश्वर है, तुम्हारा हाथ लंबे है परमेश्वर पिता, तो हाथ से सबको तू दया और करुणा दिखाने वाला परमेश्वर। इसके लिए यीशु के नाम से तुम्हारे सामने आते हैं परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, मंडली कलीसिया तुम्हारी है परमेश्वर पिता, और कलीसिया में सभी जो भाई बहनें हो, हे परमेश्वर पिता, तुम्हारा शरीर का एक एक अंग है परमेश्वर पिता। इसलिए परमेश्वर पिता, कोई भी एक अंग दुखित अगर हो तो दूसरा अंग उसको मदद करने के लिए जाता है परमेश्वर पिता। ऐसा तुमने बनाया है परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, ये तुम्हारा पवित्र आत्मा का इच्छा से अनुसरण करके परमेश्वर पिता, हम सभी मंडली में जितने भी फैमिलीज है परमेश्वर पिता, बच्चे हैं, सबके लिए हम तुम्हारे सामने धन्यवाद के साथ आते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जो कोई बीमार है प्रभु, उनको तू चंगाई दे दे यीशु के नाम में, उनका दुख जाके उनको आनंद प्राप्त होने दो परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, जिसको हाथ में काम नहीं है उसको हाथ में काम दे के परमेश्वर पिता, हे परमेश्वर, तुम्हारा इच्छा से अनुसरण करने के लिए तुम उसके हाथ में काम दे दे परमेश्वर पिता। जो परमेश्वर पिता जो पढ़ाई लिखाई कर रही है, जो तरुण यंगर्स ब्रदर सिस्टर्स है प्रभु, उनके लिए हम तुम्हारे सामने आते हैं परमेश्वर पिता। उनका हर परीक्षा में, उनका हर एक उसका जो उनका जो पढ़ाई कर रहे हैं उसकी सब तो सहायता करो, मदद करो परमेश्वर पिता, और तुम्हारा उनका ध्यान कार्य तुम्हारे तरफ लगने दो परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, तूने हमको सभी को दे परमेश्वर पिता, तुम्हारे गौरव के लिए और तुम्हारा इच्छा पूरा करने के लिए ये पृथ्वी पर रखा है। आने वाले दिन में परमेश्वर पिता, तुम्हारा नाम ऊंचा करने के लिए और परमेश्वर पिता, तुमको ऊंचा करने के लिए, हम जीने के लिए, तो हम सभी को पवित्र आत्मा से भर दे परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, हमारा हृदय तू जानता है परमेश्वर पिता, हम सभी को तू जानता है परमेश्वर पिता, क्योंकि हम तुम्हारे बच्चे हैं। तुम्हारे बच्चे को हे परमेश्वर पिता, तो कुछ भी कम पड़ने को देता नहीं है। हे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में तूने हमको सभी को एक विश्वास, एक आशा और एक आत्मा से भरा है। इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। हम कोई अलग नहीं है परमेश्वर पिता, तो तुम्हारे मस्तक जो ख्रिस्त है वो मस्तक के अधीन हम सबको है। इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। हे परमेश्वर पिता, तुम्हारा राज्य आने के लिए, और परमेश्वर पिता, जो और बहुत सारे लोग हैं जो ख्रिस्त का महिमा सुना नहीं है, उनका वचन सुना नहीं, हे परमेश्वर को उधर जाने के लिए तो हमको बोझ दे दे। हे परमेश्वर पिता, हमको मार्ग तैयार करो, और जो भी हम बोले प्रभु परमेश्वर पिता, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से बोलने के लिए और तुम हमको पवित्र आत्मा से भर दे परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, ये तुम्हारा राज्य आने के लिए परमेश्वर पिता, हम सभी जागरूक रह के पवित्र आत्मा से भर के हम तुम्हारा नाम ऊंचा और गौरव कर सके प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। स्वर्गीय पित्या, मी तुला धन्यवाद देतो स्वर्गीय पित्या। आज तुझं वचन ऐकल्याप्रमाणे प्रभू येशू, खरोखर प्रभू, पाऊल ज्याप्रमाणे सर्व सुद्धा त्याग केला प्रभू येशू, आज देखील या
वचनाप्रमाणे सर्व काय केर कचरा त्याग करण्याकरता तुझी कृपा आम्हाला पुरव प्रवेश, कारण तू जीवन देवाचा पुत्र आहेस प्रभू. या रात्रीच्या वेळी तुला गौरव सन्मान मान महिमा देतो प्रभू. मंडळी सर्व पैदल प्रार्थना करतो, मंडळीला तुझ्या हातामध्ये देतो प्रभू. तू मंडळीचं मस्तक आहेस प्रभू, तुझ्या मस्तकाच्या अधीन येतो प्रभू. आम्हाला सहाय्य कर, मदत कर प्रभू. मंडळीमध्ये असणाऱ्या सर्व पैदल जनाकरता प्रार्थना करतो, तरुण मुला मुलीकरता प्रार्थना करतो. त्यांची सर्वच गरज ख्रिस्त येशूमध्ये पुरव प्रभू. मंडळीमध्ये सर्व लहान लेकर त्या सर्वांची आठवण करतो प्रभू. त्यांना या काळामध्ये तुझी कृपा तुझी दया त्यांच्या बरोबर असते प्रभू. या वेळेमध्ये प्रभू तुला विनंती करतो प्रभू, मंडळीमध्ये जे आमचे बंधू लोक आहेत प्रभू त्यांची आठवण करतो. बंधू जकर्या पुनन त्यांची पत्नी त्यांच्या कुटुंबाची आठवण करतो. बंधू जॉर्ज थॉमस त्यांची पत्नी त्यांच्या कुटुंबाची आठवण करतो. बंधू रत्नस्वामी या कुटुंबाची आठवण करतो. या सर्व पवित्र जणांना तुझ्या हातात देतो प्रभू. तुझ्या नावाला गौरव सन्मान देतो प्रभू. या वेळेमध्ये प्रभू तुला विनंती करतो प्रभू, आम्ही या सर्व भारत देशाकरता महाराष्ट्राकरता प्रार्थना करतो. आतापर्यंत आम्हाला शांतीने समाधान ठेवलंस म्हणून तुझे आभार मानतो. येणारा काळ काय आम्हाला माहित नाही प्रभू, परंतु प्रभू तुझ्या दयेत कृपेत आमची वाढ कर प्रभू. प्रभू यावेळी माझ्या सर्व कुटुंबाची आठवण करतो. आमच्यापासून दूर असणाऱ्या आमच्या पवित्र जणांची आठवण करतो प्रभू. या वेळेमध्ये प्रभू बेंगलोर असणाऱ्या स्टीफन आणि प्रियांची आठवण करतो. तुझी कृपा तुझी दया त्यांच्या बरोबर असते. त्यांच्या हाताला काम दिलं त्याबद्दल तुझे आभार मानतो. सर्व गोष्टीबद्दल सर्व तुझी उपकार स्तुती करतो. तुला गौरव सन्मान मान महिमा देतो. तारणारे येशू ख्रिस्ताच्या गोड पैद नावाने मागतो, आमेन. प्रभु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए प्रभु। आप राजाओं का राजा, आप प्रभु का प्रभु, आप शांति के राजकुमार प्रभु। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु ये सुंदर समय के लिए, प्रार्थना सभा के लिए प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं हमारे परिवारों के लिए, घर के परिवार के लिए प्रभु। हर एक को मन फिराव का मन दे और हर एक को स्थिर रहने का आत्मा देना प्रभु। हमारे पड़ोसियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे देशवासियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे कुटुंब, हमारे रिलेटिव्स जो भी है प्रभु, हमारे फ्रेंड सर्कल्स में हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जिसको भी हमने सुनाया है आपका सुसमाचार का वचन प्रभु, हर एक को मन फिराव का मन देना प्रभु, और स्थिर रहने का आत्मा देना प्रभु। और हर एक को प्रभु, ये अंतिम समय है प्रभु, मन फिराव का प्रभु, और आपके प्रति का भूख और प्यास बढ़ने के लिए प्रभु सहायता और मदद करना। हर एक को प्रभु आपके राज्य और धार्मिकता को खोजने के लिए प्रभु सहायता मदद करना प्रभु। और हम विशेष करके प्रार्थना करते प्रभु, आज विश्व भर में प्रभु जितनी गलत शिक्षाएं घूम रहे कलीसिया में प्रभु, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु। अब सच्ची शिक्षा से प्रभु हर एक पास्टरों को प्रभु, हर एक अगुवाओं को प्रभु पवित्र आत्मा से अभिषेक करना प्रभु, और आपके डर और भय के कांपते हुए प्रभु आपकी सेवकाई कर सके प्रभु। और प्रभु जो भी मंडली में कलीसिया में जो भी भाई बहन लोग हैं प्रभु, हर एक को प्रभु गलत शिक्षाओं से बचाना प्रभु, ताकि प्रभु आपकी वचन के अनुसार मुड़े, वचन के अनुसार चले प्रभु, और प्रभु संसार की अभिलाषाओं से बचे प्रभु। और जो भी प्रभु फॉल्स डॉक्ट्रिन्स जो घूम रहा है प्रभु, उससे भी प्रभु ने बचाना, और प्रभु आपके वचन के अनुसार प्रभु चलने के लिए सहायता और मदद करना प्रभु, ताकि वो नाश होने वाले से नहीं प्रभु, पर अनंत जीवन पाने वाले से बने प्रभु, और हर एक का नाम जो है जीवन का पुस्तक में लिखा जाए प्रभु। हम विनती प्रार्थना करते प्रभु, हम प्रार्थना करते इस गुवाहाटी शहर में भी प्रभु आपका सच्ची कलीसिया बनने के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, जो भी आत्मिक जो भूख प्यास है प्रभु, उन्हें भी प्रभु लेके आना प्रभु इस संगति में, इस सभा में प्रभु, और प्रभु धन्यवाद देता हूँ प्रभु। प्रभु कलीसिया बनने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद करना प्रभु, इस जगह के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते और संपूर्ण प्रार्थना को हम जीवित मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं प्यारे पिता से, आमीन 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में आनंदित होना हमेशा ब्रदर्स भाई लोग प्रभु के हमारा मन में प्रभु ज्यादा रहना चाहिए। तो कितना प्रभु का वचन हमारा मन में रहेंगे, आपका सोच जाते तो हमारा मन भी यही अच्छा होगा, प्रभु की इच्छाएं हमारे जीवन में आएंगे और संसारिक इच्छा बहुत ही कम 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 होते जाएंगे। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का वचन, और प्रभु की पवित्र आत्मा हमको गाइड करते हैं। तो प्रभु को धन्यवाद हो। तो कल ब्रदर्स का मीटिंग है 8:45, और संडे का मीटिंग वी आर स्टार्टिंग फिजिकल मीटिंग ऑन परेल। तो मैंने सूचना भेजा है दोनों ग्रुप्स में, तो आप जरा देख लीजिए। तो हम लोग 10 बजे शुरू करेंगे, तो 10 o'clock इन द मॉर्निंग। तो जल्दी आ जाना, क्योंकि आजकल बहुत गर्मी जल्दी हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए विल ट्राई टू फिनिश आल्सो अर्ली।
तो सब लोग एक मास्क लेके आना और आपका पानी का बॉटल भी लेके आना, क्योंकि आप गर्मी में काफी है, तो ट्रेन में ट्रैवल करते टाइम समय मास्क भी पहन लेना और मीटिंग में भी मास्क पहन लेना। और तो स्नैक्स भी दे देंगे उसके बाद। तो बाकी आप लोगों का ब्रदर्स कोई किसी को बुलाना है तो भी बुला सकते हैं मीटिंग के लिए, और प्रार्थना भी करना है। हम लोग जूम का मीटिंग भी चालू रखेंगे साइड बाय साइड, तो दैट बाकी लोग भी जो आउट स्टेशन है, जो नहीं आ पाए हैं, अगर कोई बीमार है मत आइए, जूम मीटिंग में देख लीजिए। यू कैन ऑलवेज वॉच ऑन जूम एंड टेक पार्टिसिपेट ऑन जूम। तो दैट्स सेम जैसा वी आर कंडक्टिंग नाउ, वी विल बी कंडक्टिंग दैट, बट तो फिजिकल मीटिंग भी शुरू करेंगे। तो परेड में हम लोग मीटिंग करेंगे, तो परमिशन मिला है तो 10 बजे से 12 बजे तक। तो एड्रेस भी दिया है, तो एनीबडी हु वांट्स टू नो द एड्रेस कैन प्लीज कम एंड शेयर द फेलोशिप एंड प्रभु के धन्यवाद करेंगे उस दिन में। तो जो हेल्प करना चाहते हैं थोड़ा जल्दी आधा घंटे पहले आ जाए, तो 9:30 so we can put up the projector and बाकी जो कुछ भी all the things can be arranged. So praise the Lord, brothers and sisters.